International Hospital Islamabad has a state-of-the-art pharmacy services department. Pharmacy Services Department is striving hard to achieve the best practices which are implemented nationally and internationally to improve the safety of medications. There are a number of satellite pharmacies in the hospital which are dealing with patients. Pharmacy department provides medication services of inpatients, outpatients, and home health care. To ensure the safety and quality of medicines, the satellite pharmacies are dedicated towards implementation of medication management and uses guidelines and protocols such as maintaining optimum storage and safety requirements for drugs and supplies, as well as inventory and expiry management. Inpatient pharmacies provide 24/7 services to the patients. In the inpatient department, medicines are dispensed as unit dose with appropriate level of medication use and storage. Physicians' orders are received via MOAR and after reconciliation and appropriateness review are accordingly filled. Pharmacists made necessary interventions where required. Clinical pharmacists working with other healthcare professionals provide clinical decision support during multidisciplinary clinical rounds to rationalize the use of drugs for the patients. Ambulatory care pharmacies are responsible for dispensing medications to the outpatients under supervision of qualified pharmacists. Appropriateness review of every prescription is performed by the pharmacist as well as patient counseling is done at the time of dispensing. Patient education brochures and demonstration of devices usage are offered by the outpatient pharmacies. Pharmacy Department Shifa has a well-established aseptic sterile area and compounding pharmacy, providing compounding services to the inpatients, outpatients, and other hospitals. The pharmacists compound a wide array of non-sterile and sterile preparations, including total parenteral nutrition. Pharmacy also has an IV admixture program to provide most ready-to-use form of drugs in the hospital, enhancing sterility and reducing errors. Compounding pharmacy is equipped with a state-of-the-art cold room facility to ensure the cold chain is maintained and thereby minimize the risk of compromising the efficacy and safety of refrigerated medicines. Dedicated Oncology Pharmacy handles cytotoxic drugs with international standards of patient and medication safety. Mixing and dispensing in most ready-to-use form of chemo drugs including IV, IT, PO and other routes is done in the Oncology Pharmacy. Specially designed clean room and biological safety cabinets are employed for this purpose. Chemo preparations are twice verified by pharmacists, including camera-assisted verification of chemo mixing. On discharge, the patients receive bedside medication supplies along with medical teaching and counseling by the pharmacists. eShifa Home Pharmacy Services offer our valued patients ease of ordering medicines online and to be delivered at their doorstep.
Department of Pharmacy. Assalamu alaikum and a very good afternoon to everyone. Thank you for joining us today for this important online session on fluids and electrolytes in clinical practice. My name is Eman Salim and I am a resident pharmacist at Shifa International Hospital, and I will be your moderator for today's session. In clinical practice, the management of fluids and electrolytes is crucial for patient outcomes, and it requires a nuanced understanding of both the physiological principles and practical applications. We are privileged to have with us Mr. Rehan Anjum, an esteemed associate manager of clinical pharmacy at Shifa International Hospital, an assistant professor at STMU. Mr. Rehan Anjum is also an ASHP residency pharmacy program director and hold both the BCPS and BCID certifications. His expertise in clinical pharmacy and his dedication to education make him an exceptional speaker for today's topic. Before we dive in, I would like to remind everyone to please mute your microphones when not speaking to minimize background noise. And we will have a question and answer session at the end. So feel free to jot down any questions you might have throughout this presentation. Without further delay, please join me in welcoming Mr. Rehan Anjum. Over to you, sir. Thank you so much, Miss Emil, for your wonderful introduction. And today, आज का जो हमारा topic है, that is about the eye fluids and electrolytes. So, in case अगर आपको लगता है कि मुझे शायद सिर्फ इंग्लिश पे ही फोकस करना चाहिए, तो then you can write in the comment as well. My team would be there to support it. So, आज का जो topic है, that is about the eye fluids and electrolytes. First of all, the disclosure that I don't have any conflict of interest or issues. So, moving to today's agenda, just a minute. Okay. So, जब भी कभी हम बात करते हैं, हम कहते हैं फार्मासिस्ट मेडिकेशंस को देख रहे होते हैं, हम हर चीज पे इंटरवेंशंस कर रहे होते हैं, लेकिन अक्सर औकात हम ऐसा होता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आईवी फ्लूइड्स देन वी आर क्वाइट, शायद हमें नहीं पता होता कि हमने कौन सा आईवी फ्लूइड अपने पेशेंट्स को देना होता है, whether हम इसको क्रिस्टलाइट देंगे, कोलाइट देंगे, whether my patient required the IV fluids or not, and how IV fluids are being distributed in the body, और किस तरीके से जो है आपने जो इंटरवेस्कुलर वॉल्यूम है उसको ऑप्टिमाइज करना है. सो आज हम जो है इसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि हम IV फ्लूइड जो है वो कैसे दे रहे होते हैं. So today's the learning objective is that recommend an appropriate intravenous fluid regimen and monitoring parameters given a patient clinical scenarios, and discuss the appropriate role and risk for hypertonic, hypotonic saline and different kind of solutions. And electrolyte response को भी हम check करेंगे. So water, पानी is important. ठीक है. जिंदगी में आपके सेल के अंदर जो भी तरह के फंक्शन होते हैं, जिस तरीके के भी फंक्शंस हों, जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी सेलुलर रिएक्शंस होते हैं, वेदर दैट आर कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, दैट रिक्वायर्ड इन एक्वस एनवायरनमेंट, और विदाउट वाटर वो तमाम तरह के जो केमिकल रिएक्शंस हैं, वो तमाम तरह के जो प्रोसेसेस होते हैं, सेलुलर मेटाबॉलिज्म्स होते हैं, वो नहीं होते. So water is very important, and our body is composed of usually 50, 60, 70 up to 80%. जो neonates होते हैं वहाँ पे up to 80% तक भी जो body composition होती है at the start of the life, it is of water, and every time जो है वो gradually decrease हो रहा होता है.
So what has different functions like it helps in cellular metabolism, regulation of internal body temperature through respiration and sweating, transport of proteins and carbohydrates, elimination of waste through the urine and feces, and it's a shock absorber for the brain and spinal cord, also joint lubricant and so many things. अब अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर फ्रूट्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, हमारे यहाँ फ्रूट हमारी बॉडी में कहाँ पे होता है। अगर हम बात करें टोटल बॉडी फ्रूट का जो 60% होता है दैट इज इंट्रासेलुलर, वो सेल्स के अंदर होता है, दैट कंप्राइज ऑफ साइटोप्लाज्म, उसके अंदर होता है, ऑर्गेनेलीज के अंदर होता है डिफरेंट, तो दैट इज इनसाइड द सेल, ठीक है, दैट इज 60% ऑफ द टोटल बॉडी फ्लूइड इज इंट्रासेलुलर। 40% जो होता है दैट इज द एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है, ये 40% वो होता है जो कि बॉडी के डिफरेंट सेल से बाहर होता है, दैट कुड बी इंटरस्टिशियल स्पेसेस और इंट्रावेस्कुलर। अब इस 40% की अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 40% की जो अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इट इज 75% जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस, द स्पेस बिटवीन द सेल्स, एंड जस्ट 25% इंट्रावेस्कुलर, कि सिर्फ 25% वो होता है कि जो कि राउंड अबाउट आपकी वेन्स के अंदर होता है, वेन आर्टरीज के अंदर। सो अगर मैं ये कहूँ कि एक 60 केजी का पेशेंट है तो शायद उसमें उसका जो टोटल जो फ्लूइड है उसमें से 36 जो है टोटल जो फ्लूइड है फॉर एग्जांपल, तो उसका जो है वो राउंड अबाउट 60 लीटर में से 36 लीटर जो है वो इंट्रासेलुलर होगा, 24 लीटर जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, 24 में से भी जो है 24 को 75 पे डिवाइड करेंगे तो इट वुड बी 18% जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में होगा, एंड जस्ट 6 लीटर वुड बी द इंट्रावेस्कुलर। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड्स। और इस डिस्ट्रीब्यूशन को हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा सा याद रखने के लिए कि जब कभी आप आईवी फ्लूइड्स की थेरेपी दे रहे होते हैं तो उसमें हमें ये देखना होता है कि कौन सा जो है आईवी फ्लूइड, स्पेशली इन केस ऑफ रिससिटेशन, आपने देखना होता है कि कौन सा जो है वो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम रिप्लेशन करता है और ये कितना इंट्रावेस्कुलर रहता है, और कौन सा जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में मूव ऑन कर जाता है। आई फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन जो है, अब हमारे यहाँ तो शायद बहुत ही ज्यादा है कि कहीं पे भी जाए तो कहते हैं शायद ड्रिप लगाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। तो ये जो ड्रिप्स लग रही होती हैं तो सिर्फ यूएस में ही नॉर्मल सलाइन के मोर देन 200 मिलियन लीटर्स जो है वो पर ईयर यूज होते हैं। और एक और स्टडी है, इसके मुताबिक उन्होंने कहा कि जो आईसीयू के पेशेंट्स होते हैं उसमें तकरीबन 30% जो होते हैं उनको उनके डे ऑफ एडमिशन, मतलब हर 3 में से एक को लाजमी पहले दिन जो है वो आप आईवी फ्लूइड देते हैं। और हर रोज मोर देन 20% ऑफ द पेशेंट जो होते हैं वो उनको आईवी फ्लूइड यूज होते हैं। आईवी फ्लूइड बैक फ्रॉम द कॉलरा एपिडेमिक इन 1832 इज बीइंग यूज्ड, लेकिन जो पॉइंट है कि यार कौन सा आईवी फ्लूइड देना है और कौन सी स्ट्रेटजी दैट माइट वर्क फॉर माय पेशेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। जब कभी बॉडी में से फ्लूइड लॉस्ट होता है तो होता क्या है, जब जब कोई बॉडी में से फ्लूइड लॉस्ट होता है तो इलेक्ट्रोलाइट बिकम्स इम्बैलेंस्ड। फॉर एग्जांपल इट इज लाइक के इलेक्ट्रोलाइट उतने ही है, ठीक है, आपने एक जग के अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स डाले हुए हैं और उसके बाद उसमें से अगर सिर्फ आप पानी कम करते, नमक कम ना करें, तो वो नमकियात जो हैं वो ज्यादा हो सकती हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि नमकियात निकल भी जाए पानी के साथ भी। सो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है उनका जो बैलेंस था वो खराब हो जाता है, बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है, ब्रेन के जो कॉग्निटिव फंक्शन है दैट आर इम्पेयर्ड। जब यूरिन इज लॉस्ट सो द यूरिन आउटपुट इज डिक्रीज्ड, blood could be thicker and heart has to work harder, और डिफरेंट तरह के कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स बॉडी के अंदर रन होना शुरू हो जाते हैं, दैट कुड बी वाया स्वेटिंग, उसको रेस्पिरेशन हो सकता है, यूरिन आउटपुट हो सकता है, आपके जो लंग्स हैं वो एल्कलोसिस एसिडोसिस डिफरेंट स्टेप्स उनको देखा जाता है। एंड कार्डियन ऑर्गन हाइपोपरफ्यूजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट के जो पेशेंट है फॉर एग्जांपल अगर फ्लूइड लॉस्ट हो जाता है तो एक शॉक की कंडीशन आ जाती है, और जिसकी वजह से शॉक मिली है कि ब्लड जो है वो लॉस हो, ब्लड जो है वो उन एरियाज को प्रॉपर्ली परफ्यूज नहीं कर पाता, सो दैट कुड रिजल्ट इनटू द ऑर्गन फेलियर्स एज वेल। अब आईवी फ्लूइड थेरेपी के जो हैं वो प्रिंसिपल्स क्या हैं, आईवी फ्लूइड थेरेपी कब यूज करनी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेनेंस, ठीक है,
हम डेली भी अगर हम बात करें तो हम डिफरेंट जो है वो पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बेशक वी आर हेल्दी और वी आर क्रिटिकली इल व्हाटसोएवर। सो मेंटेनेंस के लिए आपको फ्लूइड लाजमी चाहिए, ठीक है। वो हर बंदे के लिए जो डेली रिक्वायरमेंट होती है दैट इज अ डिफरेंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट नीड्स। पेशेंट टू पेशेंट फ्लूइड्स की रिक्वायरमेंट वेरी करती है। अच्छा, इसमें एक मजे की बात ये होती है कि जब भी कभी हम फ्रूट्स की बात कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि जी दिन के 12-14 ग्लास आपको पीने चाहिए। तो आई वांट टू सी कमेंट्स के आप में से कितने लोग 12 या 14 ग्लास दिन के पीते हैं। आई जस्ट वांट टू सी दैट। अगर कोई पीता है तो वो रेज हैंड कर दे या कमेंट कर दे कि यस आई ड्रिंक 12 टू 14 ग्लासेस अ डे। अच्छा, चले आई गॉट सम कमेंट्स एंड अच्छी बात है कि कुछ लोग जो हैं वो अपने इस टारगेट को अचीव कर रहे होते हैं। लेकिन यूजुअली जो है ना हम मोस्ट ऑफ अस माइट भी हम अपने आप को लिमिट कर रहे होते हैं कि हम 3 से 4 6 8 ग्लासेस पी लेते हैं, या इतना हम स्पेसिफिकली टारगेट नहीं करते कि हमने जो है वो इतना ही जो है वो यूज करना है। सो होता क्या है फिर बाकी पानी जो वो कह रहे होते हैं वो पानी कहाँ से आता है, वो पानी क्यों रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो इसके लिए फिर अब हम क्या होता है कि जो बॉडी के डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, सॉरी। सो इसमें हम अगर डिफरेंट प्रोसेसेस की बात कर लेते हैं तो वहां पे भी अगर आप ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म की बात करें C6H12O6, तो जब उसका आउटपुट है दैट इज CO2 एंड H2O, तो ये कुछ जो वाटर है वो इंटरनली ही रिप्लेस हो जाता है। उसके अलावा जो बॉडी है वो देख लेगी कि कहीं पे मुझे जो है वो अपने प्रोसेसेस किडनीज को यूज करके वाटर रिटेन करना एटसेट्रा। सो दीज आर द थिंग्स। रिप्लेसमेंट उस वक्त आप कर रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे कहीं पे आपको कोई डेफिसिट आइडेंटिफाई हो जाए और यू आर फीलिंग के यार might be this patient goes into some kind of वाटर डेफिसिट एक्सेट्रा। इन दैट केस व्हाट यू डू कि वहां पे फिर जो है वो आप रिप्लेसमेंट कर रहे होते हैं। रिससिटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड फीचर है जिसमें मतलब आप आईवी फ्लूइड यूज कर रहे होते हैं। उसमें उसमें ये है कि आप जो है वो आप जब पानी लॉस्ट हो गया तो उसके बाद फिर आपने क्या करना होता है कि आप उसमें वाटर डेफिसिट जो है वो पानी जो है उसमें प्रोवाइड कर देते हैं, मोस्ट पार्टिकुलरली ड्यूरिंग द सर्कुलेटरी शॉक। और यूजुअली जो इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर में है रिससिटेशन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिनोमेना। अच्छा, फ्रूट रिप्लेसमेंट थेरेपी या फ्रूट सस्टेशन कहते हैं कि इसको इट इज अ मेडिकल प्रैक्टिस ऑफ रिप्लेनिशिंग बॉडी फ्लूइड लॉस थ्रू स्वेटिंग, ब्लीडिंग, फ्लूइड शिफ्ट और अदर पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस। Replacement of fluid intravenously resolves the imbalance and restores normal body functions, which IV solutions to administer easily to the reason of the blood loss. So, जो थेरेपी का गोल है दैट इज कि आप बॉडी के तमाम तरह के फंक्शंस को जो है वो रिस्टोर कर सकें, कोई भी शॉक है उससे निकालें और बॉडी के जो भी प्रोसेसेस हैं उनको मेंटेन करें। अब फ्लूइड रिससिटेशन कैसे आप देखते हैं कि कैसे आपको पता चलेगा कि यार व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम डिप्लीशन, ठीक है। टैकीकार्डिया हो जाएगा। टैकीकार्डिया के मतलब दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। दिल की धड़कन क्यों तेज होगी, ठीक है, कि जब कभी पानी नहीं होगा, बॉडी में पानी नहीं होगा, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम डिप्लीट है, कुछ भी है, तो लाइक दो ही ऑप्शन है दिल बॉडी के पास कि या तो वो पानी ज्यादा हो, लाइक तो वो जितने ज्यादा पानी उसको फुल पुश करें तो उतनी ज्यादा परफ्यूजन ठीक होगी। लेकिन अब पानी नहीं ज्यादा तो फिर वो क्या करेगा कि जल्दी जल्दी हाई जितना जल्दी वो हो सकता है ब्लड को वो पुश करे, और जितनी जल्दी वो ब्लड को पुश करेगा दैट विल रिजल्ट इनटू द टैकीकार्डिया। हाइपोटेंशन होगा, ब्लड नहीं है, हाइपोटेंशन हो सकता है, ऑर्थोस्टैटिक चेंजेस हो सकती हैं हार्ट रेट में एंड इन ब्लड प्रेशर एज वेल, एंड इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टू सीरम क्रिएटिनिन रेशियो ये यूज किया जाता है डिफरेंट पैरामीटर्स में। तो इनको भी देखा जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन्स ड्राई हो जाती हैं, स्किन टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, यूरिन आउटपुट डिक्रीज, डिजीनेस, कंफ्यूजन एटसेट्रा।
और एक और जो चीज़ ये होती है कि जब भी कभी आप अगर कोई पेशेंट जो है इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम डिप्लीट है, तो अगर आप उसको 500 से लेके 1000 ml ऑफ फ्लूइड बोलस देंगे, तो उसका जो है हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर जो रहता है वो इंक्रीज हो जाता है। It's not working. फ्लूइड ओवरलोड, जैसे हम फ्लूइड्स की बात करते हैं तो खाली फ्लूइड जो है वो लॉस ही नहीं, फ्लूइड ओवरलोड भी हो जाता है। कभी कभी हमें ये होता है कि हम पेशेंट को फ्लूइड दे रहे होते हैं और वो पेशेंट जो है वो स्वेल कर रहा है, तो हमें इन चीज़ों को भी तरफ देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे रेज्ड जुगुलर वेनस प्रेशर है, पेरिफेरल सैकल एडीमा है, पल्मोनरी एडीमा है। अच्छा, ये एक बहुत मजे की चीज़ है जिसको हमें देखना है। हमें अपना टारगेट जो होता है वो हमेशा फ्लूइड्स थेरेपी के अंदर आइडेंटिफाई करना है कि मैंने अपने पेशेंट को लिटिल बिट पॉजिटिव साइड पे रखना है। पॉजिटिव साइड मीन कि आपका जो इनपुट है, एक पेशेंट का जो इनपुट है कि आप उसको जितना आईवी फ्लूइड दे रहे हैं और उसका जो आउटपुट है कि जितना उससे यूरिन आउटपुट आ रहा है एक्सेट्रा, ठीक है, ये नॉर्मल है या कहीं पे आपने ज्यादा रखना है, कहीं पे कम। हाउ हाउ इट वर्क, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है वो कार्डियोजेनिक शॉक के साथ है, उसका दिल काम नहीं कर रहा, दिल वीक है, इजेक्शन फ्रैक्शन 20%। सो इन दैट केस अगर आप उसके दिल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा अगर आप आईवी फ्लूइड्स देंगे, तो क्या उसका दिल जो है वो इन द एंड एनर्जी लॉस कर देगा एंड दैट माइट कोलैप्स, दैट विल रिजल्ट इनटू द ऑर्गन फेलियर। सो इन दैट केस व्हाट वी विल ट्राई कि यार हम जो है ना फ्लूइड जो है वो कम से कम यूज करें, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू दैट वी विल ट्राई कि हमें नेगेटिव बैलेंस रखना है। लेकिन इसके बरक्स फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जो कि शॉक के साथ है, ठीक है, सेप्टिक शॉक के साथ है, उसका जो है वो ब्लड प्रेशर इज टू माइट डिक्रीजिंग एटसेट्रा, तो इन दैट केस माइट बी आपको दिल से तो उसका काम पे है, काम कर रहा है, इन दैट केस यू हैव टू सी के मुझे इसको आई फ्रूट्स देने हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको थोड़ा सा पॉजिटिव साइड रखना है, तो वी हैव टू balance each approach while giving these drugs. So the aim is to avoid dehydration, maintain effective circulatory volume, prevent any tissue hypoperfusion, and replace normal fluids and electrolyte loss और एडिमा और उसके एसोसिएटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं हम उसको प्रिवेंट कर सकें। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि फ्लूइड्स हमारे पास होते कौन से हैं। फ्लूइड्स की डिफरेंट तरह की टाइप्स होती हैं, एक दो टाइप्स आप ऐसे कह सकते हैं, क्रिस्टलाइड्स और कोलाइड्स। क्रिस्टलाइड्स वो होते हैं कि जो कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट कैन इजीली मूव अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो इजीली मूव कर सकते हैं, सेल्स के अंदर बाहर जाना उनके लिए इजी होता है, दैट यूजुअली कंप्राइज ऑफ द आयनिक मॉलिक्यूल्स ज्यादातर, ठीक है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल सलाइन का जो भी सोडियम क्लोराइड का जो भी सोल्यूशन है दैट इज क्रिस्टलाइड। इसके अलावा D5 1/5 सलाइन जो होती है नॉर्मल सलाइन, दीज आर द क्रिस्टलाइड। इसके अलावा बैलेंस्ड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस भी होते हैं। बैलेंस्ड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस क्या होते हैं कि जो सॉल्यूशंस, जैसे हमने बात की नॉर्मल सलाइन की, तो नॉर्मल सलाइन में जस्ट एक सोडियम और क्लोराइड है, ठीक है, उसमें बाकी कोई इलेक्ट्रोलाइट एटसेट्रा नहीं है। अगर हम उनकी कंसंट्रेशंस देखें तो दैट माइट नॉट बी सेम एज वी रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्मल सलाइन की बात करें तो दैट कंटेन्स 154 MEQs पर लीटर ऑफ सोडियम एंड 154 MEQs पर लीटर ऑफ क्लोराइड। अगर अगर आप नॉर्मल सलाइन की बात करते हैं तो वहां पे तो ये ठीक है, दैट्स फाइन। आपके पास जो है वो सोडियम जो है वो 135 से 145 है, तो तकरीबन राउंड करीब की है, दैट्स फाइन। बट अगर आप क्लोराइड की बात करें तो क्लोराइड की जो मैक्सिमम रेंज है दैट इज 107, और अब वहां में 154 MEQs ऑफ क्लोराइड दे रहे हैं। सो इन दैट केस जो है वो दीज आर हाइपरक्लोरेमिक एसिडोसिस की भी डेवलपमेंट हो सकती है। सो इन दैट केस पे जो है एक बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस होते हैं जहां पे कहीं पे लैक्टेट को यूज किया जाता है, कहीं पे एसीटेट्स को यूज किया जाता है, ताकि उसकी जो कंसंट्रेशन होती है दैट रिमेन्स फिक्स, दैट इज एज मच एज नियरली पॉसिबल जो कि ब्लड की होनी चाहिए, ठीक है। डेक्सट्रोज की डिफरेंट कंसंट्रेशन, दो प्रिस्क्राइब्ड। कोलाइड्स, कोलाइड्स क्या होते हैं? कोलाइड्स बड़े मॉलिक्यूल। अब जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स का क्या है कि बड़े मॉलिक्यूल्स जब आप इंट्रावेस्कुलरली देते हैं तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकते। जब वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से नहीं गुजरेंगे तो इसका मतलब है कि इंट्रावेस्कुलर ज्यादा रहेंगे। इंट्रावेस्कुलर रहेंगे तो इंट्रावेस्कुलर जो है वॉल्यूम रिप्लेनिशमेंट जो है वो इनसे ज्यादा होगी।
इसकी डिफरेंट एग्जांपल है पैक्ड आरबीसीज है, एल्बुमिन है, हेटा स्टार्च है एंड सेमी सिंथेटिक ग्लूकॉन पॉलीमर्स, दीज आर डिफरेंट एग्जांपल्स जो कि कोलैड्स की है। सो सीम्स जैसा कि अब शायद अभी आपको लग रहा हो कि यार हमें तो इंटरवेस्कुलर वॉल्यूम रिप्लेनिशमेंट चाहिए होती है, तो कोलैड्स माइट बी अ गुड सॉल्यूशन। सो अभी हम इसको देख लेते हैं। तो टोनिसिटी इज एक्चुअली द रिलेटेड टू कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड द ऑस्मोलैरिटी। ठीक है। A solution with a few particles have lower osmolarity, while a solution with a higher number of particles have higher osmolarity. For example, अगर मैं ये बात कर लूँ कि जो डेक्सट्रोज है वो प्रॉपरली डिग्रेड नहीं होता, या सोडियम क्लोराइड है वो इनटू डिफरेंट आयंस डिग्रेड हो रहा होता है। ठीक है। तो जितने पार्टिकल्स बन रहे थे, अगर आप, मैंने कहा कि सोडियम क्लोराइड में होता है, इट इज 154 MEQs per liter of sodium and 154 MEQs per liter of chloride. So उसकी osmolarity जो होगी that would be sum of all those particles. 154, 154, that is 308. So osmolarity जो tonicity होती है that is important. ये important इस वजह से होती है कि इसी के बेस के ऊपर आप एक और क्लासिफिकेशन ऑफ 5 फ्लूइड्स कर रहे होते हैं, जिसको आप कहते हैं हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। ठीक है। तो आइसो मीन्स सेम। अब आइसो मीन्स सेम, आइसोटोनिक सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन जिनकी ऑस्मोलैरिटी वुड बी सेम लाइक ऑफ द प्लाज्मा। अब प्लाज्मा की नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी इज 275 टू 290। सो अब अगर वो फ्लूइड जिसकी ऑस्मोलैरिटी समवट 275 से लेकर 290 के करीब करीब होगी, दैट वुड बी द आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। और वो सॉल्यूशंस जो कि इससे कम होंगे दैट वुड बी हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, और जो इससे ज्यादा होंगे दैट वुड बी हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। अब ये भी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब हम इनको यूज करते हैं तो दैट हैज डिफरेंट रोल कि हमने कब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यूज करना है, कब अपने आइसोटोनिक यूज करना है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन करना है, एज द नेम इंडिकेट्स। ठीक है। आइसोटोनिक, हम ये चाहते हैं कि आइसोटोनिक जब भी हम फ्लूइड दें तो उसमें ये हो कि आईवी फ्लूइड सेल के अंदर के जो पार्ट मटेरियल है, जो सेल के अपनी कंपोजिशन है, उसको मुतासर ना करे, जो कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हाइपोटोनिक करते हैं। हाइपोटोनिक में क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है कि उसमें पानी बहुत ज्यादा है, सॉल्यूट्स कम है। अब उसमें पानी ज्यादा है, सॉल्यूट्स कम है, जबकि सेल के अंदर क्या है, सॉल्यूट्स और पानी की मिकदार इक्वल है। तो इन दैट केस क्या होगा कि बाहर पानी ज्यादा है और सेल के अंदर पानी कम है, तो क्या होगा कि बाहर से पानी विल मूव इनसाइड द सेल, और इनसाइड द सेल जाएगा और सेल विल रप्चर। ठीक है। वो टर्गर हो जाएगा और सेल विल रप्चर। सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो देते हैं यूजली डाइल्यूटेड होते हैं, ये हम यूज करते हैं जहाँ पे हमारे पास हायर कंसंट्रेशंस एटसेट्रा होती हैं, लाइक हाइपरनाइट्रीमिया एटसेट्रा, तो वहाँ पे आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस को यूज करते हैं। सो इन दैट केस जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस यूज करते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस अगर आप देते हैं तो उससे सेल बर्स्ट भी हो सकते हैं। तो सो इसका सेफर एंड पे ये है कि जब भी कभी आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस दें, यूजुअली हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस फॉर एग्जांपल 1/5 सॉल्यूशन खाली अगर आप देखें, आप जब भी बात करें आप कहते हैं पीड सलाइन D4.3 1/5 सलाइन, तो 4.3 उसमें क्यों ऐड किया, ताकि उसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो। ठीक है। अब अगर आप सिर्फ पानी दे देंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, ब्लड जो है वो सेल्स जो है वो बर्स्ट करेंगे। सो इसके साथ साथ आइसोटोनिक में ये होगा कि कोई भी जो है वो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होती, सो सेल विल बी स्टेबल और उसी तरीके से। लेकिन जब आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देते हैं, अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि बाहर जो है वो सॉल्यूट ज्यादा है, इनसाइड द सेल जो है वो सॉल्यूट कम है। अब जो है वो सॉल्यूट्स वो तो इतने इजीली मूव नहीं कर पाते, पानी के लिए आसान होता है कि वो इजीली मूव कर सकते, तो क्या हो जाएगा कि सेल्स के अंदर से जो है वो फ्लूइड मूव करके बाहर चला जाएगा और जो सेल होगा वो श्रिंक करेगा। इसकी एक क्लिनिकल प्रैक्टिस ये है कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि डिफरेंट सर्जरी से पहले वो कहते हैं कि प्लीज ब्रिंग दिस हाइपरटोनिक स्लाइन। अच्छा, वो जो आप हाइपरटोनिक स्लाइन लाते हैं वो क्या करते हैं कि किसी भी सोलन मैस के इर्द गिर्द वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डालते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा कि वाटर मूव कर देता है उस एरिया में, और वो जो एरिया होता है वो श्रिंक कर जाता है, एंड देन दैट कुड बी इजीली रिमूव। सो दीज आर द एप्लीकेशंस। एक और चीज दोबारा रिमाइंडर में दे रहा हूँ अगेन कि जो है टोटल फॉर एग्जांपल आपकी जो बॉडी का 75% जो होता है वो इंटरस्टिशियल स्पेसिस में होता है एंड 25% इंट्रावेस्कुलर में होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईवी फ्लूइड जब आप दे रहे होते हैं तो फिर आपने देखना है कि यार मुझे
कौन सा IV फ्लूइड देना है, मुझे इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम चाहिए, मुझे कितना जो है वो डिक्रीज करवाना है इलेक्ट्रोलाइट्स को या व्हाट्सएवर। तो यूजुअली जो है नॉर्मल सलाइन जो होता है, लैक्टेटेड रिंगर होता है या बैलेंस्ड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, प्लाज्मालाइट एटसेट्रा, ये जो है 25% ऑफ द वॉल्यूम जो है वो इंट्रावेस्कुलर रहता है। 25% का मतलब ये है कि 1 लीटर अगर आप किसी को देते हैं तो 1 लीटर में से 250 ml इंट्रावेस्कुलर रहेगा, बाकी जो है वो 75% इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, 75% इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस एंड इनसाइड द सेल, ये मूव कर जाएगा। जैसे कि प्रीवियसली जो डिस्ट्रीब्यूशन थी बिल्कुल इसी के मुताबिक ही जो है वो हो जाएगा। डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज को यू कैन से इट्स जस्ट अ वाटर, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये पानी है, क्योंकि इसका एंड प्रोडक्ट भी जो है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो डेक्सट्रोज को हम यूज कर रहे होते हैं, हम फ्री वाटर नहीं दे सकते आईवी में, तो जब हम उसमें डेक्सट्रोज देते हैं तो अगर आप इस टेबल की अगर आप एक ओवरऑल पिक्चर देखें तो ये जो 25% एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इन इंट्रावेस्कुलर है ना, ये आपके बॉडी का जस्ट 10% बनता है। ठीक है, तो मतलब यही यू कैन कंसीडर इट एज अ वाटर। सो 100 ml जो होता है 5% एक्स्ट्रा दैट विल रिमेन इंट्रावेस्कुलर एंड द रेस्ट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। एंड एल्बुमिन जो होता है, एल्बुमिन मैंने बताया, और हाइड्रोक्सी स्टार्च वगैरह, ये कोलाइड्स हैं, ये लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, ये मूव नहीं करेंगे, ये मूव नहीं करेंगे इनसाइड द, ये इंट्रावेस्कुलरली ही रहेंगे। जब ये इंट्रावेस्कुलरली रहेंगे तो फिर ये क्या करेंगे, अब जब ये वेसल से बाहर नहीं जा सकते तो अब वहां पे सॉल्यूट की मिकदार बढ़ गई, जब सॉल्यूट की मिकदार बढ़ गई तो ये क्या करेंगे कि वाटर को खींचेंगे अपने तरफ और इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम जो है वो उसको रिप्लेनिश करेंगे। यूजुअली अराउंड अबाउट 1 ग्राम ऑफ एल्बुमिन जो है वो 20 ml ऑफ वाटर जो है वो रिटेन करता है। ठीक है, सो अगर आप एल्बुमिन 5% 500 ml देते हैं तो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम रिप्लेनिशमेंट जो है दैट इज 500 ml, और इसी तरह एल्बुमिन 25% का 100 ml देते हैं तो इट वुड बी 500%। हमारे यहाँ यूजली जो है एल्बुमिन 10% और 20% होता है। yes। तो अगर आप 20% देते हैं तो मतलब उसका जो 100 ml आप देंगे तो उससे 400 ml जो है वो वॉल्यूम एक्सपेंशन होगी। एंड सेम फॉर हाइड्रोक्सी 6%, 50%। अब देना कौन सा है, यही मैंने क्रिस्टलाइट देना है, कोलाइट देना है, डिफरेंट स्टडीज हैं। आज आपको क्रिस्टलाइट कहीं पे बेटर मिलेंगे, कल आपको कोलाइट्स कहीं पे बेटर मिलेंगे। सो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, एक डिबेट है जो कि चलेगी हर जगह पे, इसके बारे में बातें होती हैं। और डिफरेंट ट्रायल्स हुए हैं, एक सेफ ट्रायल है, उसने 4% एल्बुमिन को नॉर्मल सलाइन के साथ अराउंड 7,000 आईसीयू पेशेंट्स में कंपेयर किया। उसने कहा कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, आप एल्बुमिन दे दें या कोलाइट दे दें आप या क्रिस्टलाइट दे दें। ठीक है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो पेशेंट्स जिनको आपने कोलाइट्स दिए थे वहां पे मोर्टेलिटी रिस्क थोड़ा सा बढ़ गया था अगर वो पेशेंट ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी के साथ हैं। दिस वाज एन फाइंडिंग इन द क्रिस्टल ट्रायल। उसमें तकरीबन 2,857 पेशेंट्स थे, उनको भी क्रिस्टलाइड और कोलाइड दिया इन द शॉक रिससिटेशन, और उसमें भी कोई मोर्टेलिटी रिस्क नहीं देखा गया। लेकिन लोअर मोर्टेलिटी रिस्क जो है वो देखा गया एट 90 डेज विद कोलाइड्स। ठीक है, ये आप देखें कि शॉक के पेशेंट है, वहां पे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के साथ पेशेंट है। सेप्टिक शॉक में उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि जी वो पेशेंट जिनको हाइपोअल्बिनीमिया है और उन केस में अगर आप एल्बुमिन दे रहे होते हैं तो उसने कहा कि कोई भी डिफरेंस नहीं है एल्बुमिन में और कोलाइड्स और क्रिस्टलाइट ग्रुप में। सो दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टडीज, सो नन इज बेटर अबाउट प्रेफर्ड ऑन अदर वन। ठीक है, लेकिन यूजुअली क्रिस्टलाइट्स और क्रिस्टलाइट्स जो नॉर्मल स्लैन, रिंगर लैक्टेट, नॉर्मल सोल्स, दीज आर रिकमेंडेड। रिंगर लैक्टेट जो है वो ट्रॉमेटिक पेशेंट्स के लिए हिस्टोरिकली यूज किया जाता है। इट्स अ बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। मोर ओवर देयर डिफरेंट स्टडी जिसपे उन्होंने कहा था कि फॉर एग्जांपल जो AKI के चांसेस हैं दैट आर मोर, देयर आर मल्टीपल स्टडीज जो कि कहते हैं कि अगर आप ये देते हैं तो द पेशेंट हु रिसीव नॉर्मल सलाइन अलोन, उनमें जो है वो चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी तरह जो रिंगल लैक्टेट होता है इसके लिए ये भी कहा जाता है कि जो है ये जो है वो बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होता है, तो इट इज़ वेरी गुड टू यूज इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। लेकिन इसका कोई सुपीरियॉरिटी एज सच अभी तक
कहीं पे वेल एस्टेब्लिश नहीं है, जैसे इट्स डिबेट. सो यू कैन यूज रिंगल लैक्टेट और नॉर्मल सलाइन, दैट्स फाइन. लेकिन आपने ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट हाइपरक्लोरेमिक एसिडोसिस के साथ है, तो इन दैट केस आप क्लोराइड रिच सॉल्यूशंस, फॉर एग्जांपल नॉर्मल सलाइन को प्रेफर नहीं करोगे, आपको क्लोराइड पुअर सॉल्यूशन यूज करने पड़ेंगे. ठीक है. कोलाइड्स सीम्स बेटर देन क्रिस्टलाइड, लेकिन देयर आर सो मेनी इश्यूज विद द कोलाइड्स. एक तो कोलाइड जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं. ठीक है. एक तो ये कॉस्टली है, यू माइट नो देम. और इतना जो स्टडीज मैंने आपसे शेयर की उसमें कोई इतना डेमोन्स्ट्रेटेड कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है. ठीक है. और इसकी वजह से डिफरेंट तरह के जो है वो इवन के AKIs के चांसेस ज़्यादा होते हैं. लेकिन कोलाइड्स आपने कब कंसिडर करने हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी पेशेंट को IV फ्लूइड्स दे रहे हैं और वो अपना जो है वो फ्लूइड स्टेटस अचीव नहीं कर रहा है, इन दैट केस आपको जो है वो एल्बुमिन या कोलाइड्स यूज किए जा सकते हैं. ठीक है. और जब कभी ऐसा हो सकता है कि आप पेशेंट को ऑलरेडी इतना एडिमा हो चुका है एंड देन स्टिल ही इज नॉट मेकिंग द वॉल्यूम्स, सो इन दैट केस आप कोलाइड्स यूज कर सकते हैं. ठीक है. और एक और जो इसकी इंडिकेशन बनती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका जो है वो हैपो एल्बुमिनिया है, लेवल्स आर लेस देन 2.5, इन दैट केस यू हैव टू यूज एल्बुमिन. और इसके अलावा जब कभी आप फॉर एग्जांपल रिमूव करते हैं, एसाइटीज वगैरह रिमूव करते हैं, सो जब कभी आप एसाइटीज रिमूव करते हैं तो फॉर एवरी 6 to 8 लीटर्स जो है आपको एल्बुमिन एडमिनिस्टर करना चाहिए. और हीटर स्टार्च को नहीं यूज करना क्योंकि इसके भी कुछ स्ट्रोक एंड के सपोर्ट. अब कितना फ्लूइड देना है इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था. ठीक है. अब कितना फ्लूइड देना है इसको ऐसे कर सकता हूँ कि आपने देना किस लिए है, whether it is a maintenance or whether it's a resuscitation, so depending upon the patient conditions आपने इस चीज को देखना है. ठीक है. सबसे पहले आपने 500 से 1000 ml अगर आप resuscitation के लिए दे रहे हैं तो आपने 500 से 1000 ml ऑफ कोई भी सोल्यूशन क्रिस्टलाइट प्रेफरली आप उनको देते हैं, फिर रीवैल्यूएट करते हैं कि सारे सिम्टम्स इम्प्रूव हुए. अगर वो हो रहे हैं देन you might need to continue it. In other case, you might need to use other drugs as well. अच्छा, यूजली जो मेंटेनेंस होती है उसके लिए 2-3 तरह की अप्रोचेज यूज होती है. एक ये है कि 25 से 35 ml पर केजी आप यूज कर लें पर डे. और उसमें एक और जो तरीकाकार वो ये कर रहे होते हैं कि जो भी होता है फॉर फर्स्ट 10 kg जो भी होता है उसको आप 100 ml पर केजी से दें. फिर जो नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक 60 kg का पेशेंट है. ठीक है. उसके जो बॉडी के पहले 10 kgs हैं उसके लिए आप 100 ml पर केजी, दैट इज 1000, दैट इज 1 लीटर. फिर ठीक है. अगले जो 10 kgs हैं उसके लिए आप 50 ml पर केजी से दें, तो 15 to 10 500, सो 1500 ml हो जाएगा पहले 20 kg के. फिर जो रिमेनिंग केजीज बचते हैं लाइक 60 में से 20 निकल गए तो 40 kg, तो दैट वुड बी 20 ml पर केजी. तो 14 to 20 दैट इज 800, तो ये तकरीबन 2300 ml बन गया. सो एक चीज याद रखिएगा कि जो ये जो फ्लूइड होता है आप आई फ्लूइड में कंपोजिशंस कर रहे हो तो उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता दैट यू हैव टू लिमिट योरसेल्फ कि जी आप 2300 है तो 2300 हो गया. लेकिन मतलब इट इज लाइक 2300 है तो प्लस माइनस 10%, दैट इज ओके. ठीक है. इतना आप उसमें चेंज कर सकते हैं. एंड बेस्ड अपॉन द बॉडी फंक्शन मेटाबॉलिज्म्स यू माइट नीड टू चेंज, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे कि फीवर हो गया तो वहाँ पे फ्लूइड लॉस ज़्यादा हो जाता है. और जब कभी भी आपके पास ऑप्शन हो तो आपने ओरल फ्लूइड्स यूज करने होते हैं. ऑस्मोलैरिटी को लाजमी कैलकुलेट करना होता है. ऑस्मोलैरिटी को कैलकुलेट इस वजह से भी करना होता है कि जब आप आई फ्लूइड्स दे रहे होते हैं तो जब कभी आई फ्लूइड्स आप देते हैं तो फ्लूइड्स विद एन ऑस्मोलैरिटी लेस देन 900 मिली ऑस्मोल वो आप पेरिफेरल लाइन से दे सकते हैं, मतलब जो बाजू का आम कैनोला है उसके जरिए आप दे सकते हैं. लेकिन जब ऑस्मोलैरिटी 900 ml से ज्यादा हो जाती है तो फिर आप उसको पेरिफेरली नहीं दे सकते, आप उसको सेंट्रली देंगे. उस सेंट्रली का मतलब ये है कि दिल के करीब किसी लार्ज बोर वेन के अंदर या आर्टरी के अंदर आप उसको देंगे ताकि वो क्विकली डाइल्यूट हो जाए और जो फ्लेबाइटिस जो चांसेस इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंसेस है वो ना काज करे. ऑस्मोलैरिटी कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि आपने मिलीमोल्स निकालने होते हैं. मेरे ख्याल में फार्मासिस्ट इस लेक्चर में हम ना ही कैलकुलेट करें, लेकिन इट इज जस्ट आसान सी बात है कि
आपने मोल्स निकाल दिए एंड देन उनको जो है आपने मिली इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे मिली ऑस्मोस से कि एक बार सोडियम क्लोराइड है तो उससे कितने चीजें बनेंगी, दो बनेंगे, सोडियम एक और क्लोराइड दो, तो उसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल रिजल्ट। अच्छा, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, इलेक्ट्रोलाइट्स। हम जब कभी बॉडी की बात करते हैं, हम पानी की बात करते हैं, हम खुराक की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, these are the highlight medications, ठीक है। these are the trace requirements of the body। बहुत ही थोड़ी मिकदार में हमें चाहिए होते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज डिफरेंट जगहों पे ये वर्क कर रहे होते हैं। कहीं पे को फैक्टर काम कर रहे होते हैं, कहीं पे ये एज एन आयन एक्सचेंज कर रहे होते हैं, कहीं पे ये मूवमेंट को हेल्प कर रहे होते हैं। सो हर जगह पे आपने सोडियम पोटेशियम पंप्स का तो नाम सुना ही होगा, कैल्शियम का भी सुना होगा। सो दीज आर द इलेक्ट्रोलाइट्स जिनको आपने देखना होता है, ठीक है। दीज आर द हाईलाइट मेडिकेशन। अब अगर हम बात करें तो आपके बॉडी के अंदर कुछ जो होते हैं आयन जो होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, कुछ इंट्रा सेलुलर होते हैं। याद रखिएगा, जब कभी आप लेवल्स लेते हैं, ठीक है, तो लेवल में यूजुअली जो कंसंट्रेशन आ रही होती है दैट इज द एक्स्ट्रा सेलुलर। तो जहां कहीं पे आपके पास वैल्यूज 100 प्लस आ रही है तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस है, और जहां कहीं पे उसकी वैल्यू लेस देन 100 आ रही है दैट आर इंट्रासेलुलर। फॉर एग्जांपल, सोडियम की वैल्यू होती है 135 से 145 एमईक्यूज पर लीटर, सो इट्स एक्स्ट्रा सेलुलर आयन। पोटेशियम की वैल्यू होती है 3.5 टू 4.5 और 5, तो दैट इज इंट्रासेलुलर, ठीक है। सो सोडियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आयन। तमाम तरह के जो आपकी पोलराइजेशन रिपोलराइजेशन है उसमें सोडियम आयंस आर इन्वॉल्व। नॉर्मल वैल्यूज जो है देन 135 एमईक्यूज पर लीटर, 135 टू 145। इसमें हमेशा यार कभी भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की बात करें, इम्बैलेंस का मतलब ये है कि कभी कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर सोडियम कम हो तो दैट इज नॉन एज हाइपोनाइट्रीमिया, ठीक है, और अगर सोडियम ज्यादा हो दैट इज हाइपरनाइट्रीमिया। तो हाइपोनाइट्रीमिया में यूजुअली जो हमारे पास होता है 135 से लेकर 140 तक होता है, लेकिन यूजुअली 125 से लेस होता है जब वो सिम्टोमेटिक हाइपोनाइट्रीमिया होता है, ठीक है। और जो आपने ट्रीट करना दैट इज आल्सो सिम्प्टोमेटिक हाइपोनाइट्रीमिया, उसके साथ सिम्टम्स होते हैं दैट नाउजिया एंड मलेज। वो 115 से 120 तक जो है वो हेडेक होता है, लेथार्जी, सिडनेस, कंफ्यूजन, डिजीनेस, सो मेनी थिंग्स। और अगर 115 से कम हो तो सीजर एंड कामा हो सकता है, ठीक है। तो दीज आर, तो जब भी आप ट्रीट करेंगे तो आपने हाइपोनाइट्रीमिया को ट्रीट करना होता है। अच्छा, जब भी कभी आप लैब्स देखते हैं तो एक पॉइंट याद रखिएगा कि फॉरेन कंक्लूजन की तरफ नहीं पहुंच जाते। आपने हमेशा देखना होता है कि व्हाट आर द कंफाउंडिंग फैक्टर्स, व्हाट कुड बी द फैक्टर्स दैट कुड लीड टू दिस अबनॉर्मल वैल्यू। उसके फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखेंगे किसी भी पेशेंट को हाइपर ग्लाइसीमिया है, और हाइपर ग्लाइसीमिया में भी ये है कि अगर उसको 100 से 400 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा शुगर है, किसी का 600 है, 800 है, 900 शुगर है, इन दैट केस क्या होता है कि जब जो शुगर मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे तो टॉनिसिटी को मेंटेन करने के लिए बॉडी क्या करती है कि वो सोडियम को इनसाइड सेल मूव कर जाती है। तो इनसाइड सेल मूव करवाने के लिए कि फॉर एग्जांपल अगर फॉर ईच एवरी 100 mg पर डेसीलीटर एलिवेशन द ग्लूकोज, तकरीबन 1.6 mg पर लीटर जो होता है वो सोडियम आपका डिक्रीज हो रहा होता है। इसी तरीके से आपको हाइपोकैलेमिया को भी देखना होता है। दिस इज जस्ट अबाउट द बैलेंसिंग द इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा, जब भी कभी आप हाइपोनेट्रीमिया को ट्रीट करते हैं तो सबसे पहली चीज होती है असेसमेंट कि वेदर ये हाइपोवॉल्यूमिक है, यू वॉल्यूमिक है या हाइपर वॉल्यूमिक है, ठीक है। हाइपोवॉल्यूमिक ये कि बंदे में पानी नहीं है, ठीक है, बंदे में पानी नहीं है, उसमें कुछ भी वॉमिटिंग है, डायरिया है, फीवर है, कोई भी चीज है, इन दैट केस क्या है कि वो उसमें पानी की मिकदार कम है। इन दैट केस आपने देखना होता है कि अगर हाइपोवॉल्यूमिक है तो सबसे पहली चीज ये होती है कि आपने उसको यू वॉल्यूमिक करना है, आपने उसको आईवी फ्लूइड्स देने हैं, ठीक है, आईवी फ्लूइड्स देने हैं। और फिर आईवी फ्लूइड्स देने के बाद जब वो यू वॉल्यूमिक हो जाए तो फिर आपने उसमें देखना है कि सर कोई सॉल्ट वेस्टिंग एक्सेट्रा तो नहीं है कोई भी, और उसको सोडियम क्लोराइड और फ्लूरोकोर्टिसोन के जरिए भी मैनेज किया जा सकता है। यू वाले पेशेंट में ये है कि जिनका बॉडी पानी भी ठीक है और उनमें सोडियम भी ठीक है, तो इस केस में फॉर एग्जांपल आप कोई मेडिकेशन यूज करें कुछ भी है, लेकिन इसमें जो मजे की बात है कि यूरिन ऑस्मोलैरिटी जो होती है दैट वुड बी मोर देन 100 मिली ऑस्मोल, ठीक है।
और अगर ऐसा कुछ केस है कि ये SIADH है, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट सिक्रीशन ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, सो इन दैट केस आपने जो है वो एजेंट्स यूज करने हैं, जैसे डमिक्लोसाइक्लिन, वेसोप्रेसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, वेप्टन्स जो होते हैं ये अभी हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल हो चुके हैं। ठीक है, तो आपने इनको यूज करना है। ठीक है, और उसके अलावा जो है यू वॉल्यूमिक में अगर आप इस तरीके से यूज कर रहे हैं और कोई पेशेंट नहीं ट्रीट हो रहा है, इन दैट केस आप जो है वो हाइपोटोनिक सलाइन एक्सेट्रा ये रिप्लेसमेंट्स कर सकते हैं। हाइपर वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया में क्या, हाइपर वॉल्यूमिक में नमकियात तो पूरी है लेकिन पानी ज्यादा है। जब पानी ज्यादा है तो इन दैट केस क्या है कि आपको जो है जब पानी ज्यादा है तो फिर उसमें आपको ये है कि सोडियम ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको पानी निकालने की जरूरत होती है। तो इन दैट केस आपको क्या करना होता है कि वाटर रिस्ट्रिक्शन करनी होती है, और जो भी अंडरलाइंग काज है किस वजह से ये हो रहा है, कि फॉर एग्जांपल SIADH एंटी डायबिटिक हार्मोन की वजह से ये हो रहा है, तो आपको उन तमाम चीजों को देखते हुए आपने उसको करेक्ट करना होता है। तो इसमें भी जो है वो लाइक वेसोप्रेसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इनको यूज किया जाता है, जैसे कोनिवेप्टन एंड टॉलवेप्टन। इनके साथ जो होते हैं थोड़ा सा लीवर फेलियर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, लेकिन आई गेस टॉलवेप्टन शायद पाकिस्तान में अवेलेबल होगी। आई डोंट थिंक सो कि अभी हम इसको डिस्कस करें, काफी टाइप है। अगर हम हाइपोटोनिक स्लाइन की बात करें तो हाइपोटोनिक स्लाइन एनीथिंग जिसकी ऑस्मोलैरिटी मोर देन 300 होगी, दैट वुड बी हाइपोटोनिक स्लाइन। ठीक है, वो 1% सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है, वो 2% भी, 3 भी, 4 5 6 7 8 अप टू 23.4% तक बनाया जाता है। लेकिन जो रिप्लेसमेंट की जाती है वो यूजली 3% के साथ की जाती है, और जो 23.4% होता है वो यूजली यूज किया जाता है कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी या न्यूरोलॉजिकल इंजरीज है उनको प्रिवेंट करने के लिए आप यूज करते हैं। तो होता क्या है कि मतलब जैसे मैंने कहा था कि हाइपोटोनिक स्लाइन के यूज की बात बता रहा हूँ, कि अगर हाइपोटोनिक स्लाइन में क्या है कि सॉल्यूट ज्यादा है, पानी कम है, तो क्या करता है कि दूसरी जगहों से भी पानी को अपनी जगह पे खींचते। तो अगर आपके पास कोई पेशेंट ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के साथ है या इंट्राक्रैनियल प्रेशर उसका बढ़ा हुआ, तो जब आप उसको हाइपोटोनिक स्लाइन देते हैं या मैनिडोल कोई भी हाइपोटोनिक चीज देते हैं, तो क्या होता है कि उस एरिया से अंदर, ब्रेन के अंदर से वो पानी निकल के इस तरफ को आ जाएगा, तो वो जगह श्रिंक करेगी। अदरवाइज क्या होगा, इन दैट केस अगर आप डेक्सट्रोज वगैरह देते हैं, ठीक है, तो डेक्सट्रोज अगर आप देंगे तो डेक्सट्रोज ने क्या करना है, उसने तो हर जगह पे मूव कर जाना है, तो वो मेनिंजेस के अंदर भी जाएगा और वो उनको स्वेल करके रप्चर कर देगा। सो यू कैन से कि अगर कंट्रा इंडिकेशन अगर मैं डेक्सट्रोज की बात करूं, तो इट्स नॉट द डायबिटीज, डायबिटीज इज नॉट एक्चुअली द कंट्रा इंडिकेशन ऑफ डेक्सट्रोज। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो आप उसको डेक्सट्रोज दें। फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ, आप ये कहते हैं कि यार इस पेशेंट को डायबिटीज है, हम इसको डेक्सट्रोज नहीं दे सकते। भाई, इसका मतलब ये एक पेशेंट का डायबिटीज है, हम इसको रोटी नहीं दे सकते। डेक्सट्रोज इज कार्बोहाइड्रेट, तो क्या हम उसको रोटी नहीं देंगे? हम रोटी देंगे, लेकिन हमने शुगर को मैनेज करना है। तो हमने क्या करना है कि इन दैट केस इंसुलिन और व्हाटसएवर ऑप्शंस आर देयर दैट यू हैव टू यूज देम एंड यू हैव टू यूटिलाइज देम। मोरओवर अभी सॉरी मुझे अभी थोड़े से पॉइंट्स याद आ गए अबाउट डेक्सट्रोज, आई मिस्ड इन माय प्रेजेंटेशन प्रीवियसली। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट ऐसा है कि जब भी कभी आप ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म की बात करते हो, यू नीड थायराइड, ठीक है, विटामिन B1 आपको चाहिए होता है। तो वो लोग जो कि अल्कोहल यूजर्स होते हैं, ठीक है, अगर वो आपके पास पेशेंट आ जाता है तो वहां पे एक मूड की या एक खास किस्म की इंसेफेलोपैथी के साथ आते हैं जिसको कहते हैं वर्निक इंसेफेलोपैथी। तो अगर इस तरह के जो पेशेंट अगर आपके पास आते हैं वर्निक इंसेफेलोपैथी के साथ, तो इन दैट केस जो है वो फिर आपने उनको डेक्सट्रोज नहीं देना होता। वहां पे उनको अगर आप डेक्सट्रोज देंगे तो पहले सब पहले आपने थायामीन देना है। तो थायामीन विटामिन B1 जो है वो आप IV उनको देंगे एंड देन यू हैव टू यूज द डेक्सट्रोज। ठीक है, और 3% हाइपोटोनिक लाइन आपने जब यूज करना है, यूजली हाइपोटोनिक लाइन जो है वो अब आपने ट्रीटमेंट कब करनी है? सिम्टोमेटिक हाइपोनेट्रीमिया के लिए, एसिम्टोमेटिक के लिए आपने यूज नहीं करना, और एक्यूट के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। क्रोनिक हाइपोनेट्रीमिया के लिए आपको थोड़ा सा देखना होता है। क्रोनिक हाइपोनेट्रीमिया क्योंकि जो बूढ़े लोग होते हैं वो खाना पीना थोड़ा कम करते हैं, पीना कम करते हैं, तो वो उनमें क्या होता है कि डिहाइड्रेशन हो रही होती है और आहिस्ता 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 उनकी बॉडी जो होती है उससे स्टेबलाइज हुई होती है। इन दैट केस आपने इसको ख्याल करना है।
क्रोनिक एसिम्प्टोमेटिक हाइपोनाइट्रीमिया के लिए नहीं देना। सेकेंडरी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस मैंने आपको कहा कि पहले आप उसका ग्लूकोज ठीक करेंगे तो शायद वो इनसाइड द सेल्स सोडियम वो बाहर आ जाएगा। सीएचएफ के साथ जो होता है वहां पे भी आपने नहीं देना होता, ठीक है। जब भी कभी आप हाइपोटोनिक सलाइन देते हैं तो आपका जो गोल होना चाहिए दैट शुड बी कि आपने यूजुअली 8 एमईक्यूज पर लीटर से ज्यादा आपने इंक्रीज नहीं करना होता, ठीक है। अगर आप 2 डेज की बात करें तो शायद आपको 18 की भी वैल्यू मिल जाएगी, पहले 13 12, लेकिन अब जो है वो गाइडेंस बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गई कि आप 8 एमईक्यूज पर लीटर पर डे से इंक्रीज ना करें। और इसकी एक वजह ये है कि जब आप 8 एमईक्यू से ज्यादा इंक्रीज कर रहे होते हैं तो देयर वुड बी टू मच रैपिड शिफ्टिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्स के न्यूरोलॉजिकल सेल्स से। जब वो रैपिडली मूव करते हैं, जो माइलिन शीट होती है, तो वो उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, तो उसको कहते हैं ओडीएस या ऑस्मोटिक डिमाइलिनेशन सिंड्रोम। तो दैट इज इरिवर्सिबल, सो दैट कुड बी वेरी क्रिटिकल थिंग। तो दैट के सामने क्या करना होता है कि आपने जो है वो स्मॉल बट क्विक रेज ऑफ सोडियम करना होता है। यूजुअली इट इज 0.75 टू 1 एमईक्यूज पर लीटर पर आप इसको इंक्रीज कर रहे होते हैं। जब आपकी लेवल जो है 120 एमईक्यूज पर लीटर तक पहुंचते हैं तो फिर आप इस रेट को मजीद कम कर लेते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप बोलस दें एंड देन यू कैन यूज कॉन्टिन्यूस, लेकिन यूजुअली जो तरीकाकार है, जो अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं, ठीक है, कि कितना हाइपोटोनिक स्लाइन दे सकते हैं। इट इज नॉट अ हार्ड, कोई कोर लर्निंग नहीं है या कहीं रेफरेंस बेस्ड नहीं है, दैट्स बेस्ड फ्रॉम माय प्रैक्टिस कि हर बंदे को अगर आप 10 ml पर केजी हाइपोटोनिक स्लाइन दें, दैट वुड बी राउंड अबाउट इट्स मैक्सिमम। कि 60 केजी का बंदा है तो उसको आप 600 ml दे सकते, ठीक है। 600 ml से ज्यादा आप उसको एक दिन में नहीं दे सकते, सो इट वुड बी 200 ml टीआईडी। इसका डेफिसिट का फार्मूला होता है, तो वो यूजुअली ऐसे होता है कि मेल्स में 12 ml होता है, फीमेल्स में 10 होता है। तो मतलब 720 ml मेल के लिए होगा और 600 फीमेल के लिए होगा, लेकिन आपने आसानी के लिए याद रखने के लिए कि 1 ml पर केजी अगर आप किसी भी पेशेंट को हाइपोटोनिक सलाइन देंगे तो उसका 1 ml इंक्रीज होगा। सो अगर 60 केजी का पेशेंट है उसको आप 60 ml हाइपोटोनिक 3% हाइपोटोनिक देंगे, उसका 1 ml इंक्रीज होगा। और उसको आप 600 ml देंगे तो उसका 10 ml पर डे इंक्रीज होगा। इस तरह आपने नहीं करना। अब कुछ गाइडलाइन जो है वो 8 ml कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने 8 ml पर केजी से 8 ml पर केजी पर डे से ज्यादा नहीं करना, ठीक है। हाइपोटोनिक सलाइन की कॉम्प्लिकेशंस, हाइपोकैलेमिया, ऑस्मोटिक डिमाइलिनेशन सिंड्रोम मैंने कर दिया था। हाइपोक्लोरेमिक एसिडोसिस, क्लोराइड इसमें बहुत ज्यादा होता है, फ्लीबाइटिस होता है, कॉर्डियोपैथी होती है, हाइपोटेंशन होता है। these were the posts, but I think so कि हमें रहने देते हैं। हाइपरनेट्रीमिया में क्या है कि सोडियम ज्यादा हो गया है, तो उस इन दैट केस आपने क्या करना है कि सोडियम को रिमूव करवाना है या वाटर जो होता है उसको ज्यादा करवाना है, ठीक है। तो इन दैट केस क्या आपने क्या करना है, इसकी जो ट्रीटमेंट है उसमें यूजली आप यही कहेंगे ना कि हमने इसको पानी देना है। तो मुझे पानी देने वाला सिस्टम है, पानी आप नहीं दे सकते तो उसका जो सोल्यूशन है दैट इज एक्सपोज वाटर। आप D5 वाटर दे दें या उसको किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ करके उसकी ऑस्मोलैरिटी को मैच करें, तो उसकी ऑस्मोलैरिटी जितनी बेटर होगी तो उतना वो पेशेंट के लिए ईजी होगा। Laubenstein preferred crystallite for fluid resuscitation and distillatory with hypotonic patient with hypernatremia। और इसके साथ पेशेंट विद सीवियर सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में रिक्वायर्ड डेस्मोप्रेसिन आप उनको दे दें। और अगर वो एडीएच एक्सेट्रा नहीं कर सकते तो आपने डेस्मोप्रेसिन देना होता है। अच्छा, जब कभी आप फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर रहे होते हैं उसमें भी शायद आपने देखा होगा कि पेशेंट हाइपो नेट्रीमिया के साथ है, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया के साथ उसमें अगर आप डेस्मोप्रेसिन एक्सेट्रा देते हैं तो उसमें क्या होगा कि पानी जो है वो ज्यादा हो जाएगा, पानी की रिटेंशन हो जाएगी, तो वो हाइपोनेट्रीमिया काज करता है। हाइपोनेट्रीमिया तो ऑलरेडी पेशेंट हाइपोनेट्रीमिया, फिर उसको आप डेस्मोप्रेसिन क्यों देते हैं? इट वाज बेस्ड अपॉन स्टडी जिसमें ये कहते हैं कि आप अगर किसी पेशेंट को सीवियर हाइपोनेट्रीमिया हो तो इन दैट केस वो हाइपोटोनिक सलाइन भी ज्यादा देते हैं और डेस्मोप्रेसिन भी देते हैं। तो उसमें बॉडी को इतना टाइम मिल जाता है कि जो ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम है दैट इज जस्ट टू प्रिवेंट दैट कॉम्प्लिकेशन। मैं सिर्फ एक और आज डिस्कस करूंगा, दैट विल बी द पोटाशियम। पोटाशियम जो होता है वो इंट्रासेलुलर होता है, मैन इट्स अ हाई ड्रग्स
कंसिडर ड्रग है, इसको अगर आप प्रॉपर्ली यूज नहीं करते दैट वुड बी लीथल एज वेल, एंड यू माइट नो कि इट्स बीन यूज्ड, जो कि लॉन्ग टर्म जो प्रीवियसली जो होती थी ज़ाइमोद, उसके लिए भी पोटाशियम का इंजेक्शन जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। एंड पोटाशियम सोडियम चैनल्स आर एवरीवेयर एंड वी यूज इट। अब इसमें भी हाइपोक्लीमिया एंड हाइपरक्लीमिया होता है। हाइपोक्लीमिया जो होता है दैट इज लेस देन 3.5 mEq। अब इसकी जो मैनेजमेंट होती है पोटाशियम, दैट इज यूजुअली मैनेज बाय किडनी, और वो इसको इफेक्टिवली मैनेज कर रहा होता है। लेकिन फिर भी कभी कभी पोटाशियम जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। तो अगर पोटाशियम की वैल्यूज क्रिटिकल हो जाती हैं, क्रिटिकल वैल्यूज होती हैं 2.5 से लेस, ठीक है, तो इन दैट केस जो है वो आईवी कुड बी यूज, अदरवाइज जो है वो आप ओरल यूज कर सकते हैं। हाइपोक्लीमिया जब भी होता है तो आपने उसकी रीजंस को देखना होगा। फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि एक पेशेंट्स कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे बीटा 2 एगोनिस्ट हो गया, इंसुलिन हो गया। जब भी कभी बीटा 2 एगोनिस्ट या इंसुलिन आप देते हैं तो इनसाइड द सेल मूवमेंट ऑफ पोटाशियम होती है। अगर आप किसी पेशेंट को इंसुलिन देके उसके बाद पोटाशियम की लेवल लेंगे तो दैट विल बी हाइपोकैलेमिक, दिस डज नॉट वारंट कि आप यूज करें पोटाशियम। सो इन दैट केस यू हैव टू लुक केयर, इस पेशेंट का जो है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंट्रासेलुलर शिफ्ट ऑफ मेडिकेशंस क्या है, ठीक है। सो आपने उन चीज़ों को देखना है, और अगर कोई भी फॉल्स हो तो आपने उसका वेट करना होता है, ठीक है। डिक्रीजिंग मैग्नीशियम जो है उसकी वजह से भी पोटेशियम का लॉस हो रहा होता है। तो ऐसा कभी है कि अगर आप कहीं भी पोटेशियम रिप्लेस कर रहे हैं और पोटेशियम रिप्लेस नहीं हो रहा, इन दैट केस फिर आपने इसको मैग्नीशियम भी रिप्लेस करना होता है। हाइपोक्लीमिया यूजुअली यू कैन से कि जो भी आपके पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल है उसमें पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो मोस्टली दैट वुड बी अबाउट इट, एंड मोर ओवर एब्डोमाइलोसिस भी हो जाता है, उसकी वजह से भी जो है वो सेल जो है वो रप्चर हो जाए अगर, तो उसकी वजह से हाइपोक्लीमिया होता है। अच्छा जी। हाइपोक्लीमिया में एसिड डिप्रेशन होती है, जबकि हाइपरक्लीमिया में वाइट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है। ये अगर आप इसी चेंजेस को देख सकें। अच्छा, अब हाइपोक्लीमिया के ट्रीटमेंट के लिए क्या है कि यूजुअली जो आप हाइपोक्लीमिया अगर लेस देन ग्रेटर देन 2.5 है तो आप उसको ओरल से रिप्लेस कर सकते हैं या 20 mEq दे सकते हैं। लेकिन अगर वो उससे भी कम है तो इन दैट केस यू हैव टू यूज द आईवी KCl, एंड इट मस्ट बी डाइल्यूटेड एंड इट शुड बी डाइल्यूटेड इन एनी केस। कंसंट्रेटेड KCl कभी भी यूज नहीं करते, ठीक है, इट कॉज डेथ। तो उसको डाइल्यूट करना है, और कितनी जल्दी देना है कि आप 10 to 20 mEq 10 mEq पर आवर आपने देना होता है। लेकिन अगर बहुत ही इमरजेंसी है तो पेरिफेरल लाइन के जरिए आप 20 mEq पर आप दे सकते हैं, और इसी तरह आप सेंट्रल लाइन से 20 mEq पर आप दे सकते हैं। लेकिन बहुत ही क्रिटिकल है तो देन 40 mEq पर आवर भी दे सकते हैं। लेकिन इसको कंटिन्यूस ECG मॉनिटरिंग के साथ करते हैं, एंड देन आफ्टर सम टाइम जो है हम इसको जो है वो हम वापस रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। ओरल केसेस शुड बी कंसीडर्ड इफ नो सिम्टम्स आर देयर, और मैक्सिमम जो डायल्यूशन है दैट इज 60 mEq पर लीटर आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, जब भी कभी आप पोटाशियम की रिप्लेसमेंट करें तो सबसे पहले चीज़ है कि आपकी आइडेंटिफिकेशन लेवल की अच्छी होनी चाहिए, एंड आपको हमेशा 2 to 4 आवरली पोटाशियम को चेक करना चाहिए, ठीक है। अब आपने देखना है पोटाशियम क्लोराइड साल यूज करना है या पोटाशियम एसीटेट। अगर पेशेंट को हाइपोक्लोरिमिक एसिडोसिस है तो इन दैट केस आप पोटाशियम क्लोराइड नहीं यूज करोगे, अदरवाइज पोटाशियम क्लोराइड इज प्रेफर्ड। लेकिन अगर एसिडोसिस है तो उसमें आप पोटाशियम एसीटेट यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, दिस इज अ टेबल फॉर एग्जांपल कि जहाँ पे आपने पोटाशियम को कैसे यूज करना है, ठीक है। हाइपरक्लीमिया इज important. हाइपरक्लीमिया के लिए सॉरी आई हैव some short time so I am going so much quickly. हाइपरक्लीमिया में क्या होगा कि पोटाशियम ज्यादा, जब पोटाशियम ज्यादा हो गया तो क्या होगा, वो हार्ट ब्लॉक करेगा। जब वो हार्ट ब्लॉक करेगा तो इट्स डेथ। सो इसके लिए हाइपरक्लीमिया की जो ट्रीटमेंट होती है, हाइपरक्लीमिया अगर ग्रेटर देन 6 है, इन दैट केस आपने क्या करना होता है कि आपने फौरन से पहले उस मेम्ब्रेन की स्टेबलाइजेशन करनी है। मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन के लिए आपने कैल्शियम ग्लूकोनेट देना 1 to 2 ग्राम IV ओवर 2 to 10 मिनट्स। तो उससे क्या होगा कि जो अरिथमियाज होते हैं वो नहीं होते, बट इट हैज नथिंग टू डू विद द हाइपरकैलेमिया या पोटाशियम को वो इनसाइड द सेल लेके जा रहा है या एक्सक्रीट कर रहा है। सो जस्ट ऐसा रेस्क्यू थेरेपी आप कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, देन उसके बाद फिर आप क्या कर रहे होते हैं,
अब आपको टाइम मिल गया कि जहाँ पे आप थोड़ी सी इंटरवेंशन कर सकें। फिर उसके बाद आपने ड्रग्स देनी है, ताकि थेरेपी का गोल ये है कि हमने पोटेशियम बॉडी से निकालना है, लेकिन जो बॉडी से पोटेशियम निकालने के लिए ड्रग्स हैं, दैट टेक्स टाइम। मीनवाइल आपको कुछ ना कुछ इंटरवेंशन चाहिए जो कि आपको हेल्प आउट कर सके। सो आपने ड्रग्स देनी है जो कि सेल को इंटरसेलुलर मूव करवा दें। फॉर दैट आप इंसुलिन दे सकते हैं विद ग्लूकोज। ग्लूकोज इट डिपेंड्स, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट डायबिटिक है ऑलरेडी, उसका ग्लूकोज लेवल इज मोर देन 200, तो ग्लूकोज आपने नहीं देना, ठीक है। इंसुलिन देंगे तो इंसुलिन या बीटा 2 एगोनिस्ट वगैरह, ये जो है वो इनसाइड द सेल जो है वो इसको मूव कर जाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट आप दे सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द पीएच ऑफ द पेशेंट। अगर पीएच जो है वो एसिडोसिस की तरफ है तो सोडियम बाइकार्ब आप दे सकते हैं। अल्ब्यूट्रोल कुड बी यूज, बट इसकी एक कंप्लेन ये है कि 40% ऑफ द पेशेंट इसको रिस्पॉन्स नहीं करते, लेकिन इट कुड बी यूज्ड अलोंग विद इंसुलिन। सो अब जो है आपको 30 to 35% का टाइम मिल गया। जब कभी आप किसी पेशेंट को इंसुलिन देंगे तो उस वक्त आप उसका अगर पोटेशियम लेवल करेंगे, बेशक वो 6.5 था तो शायद अभी वो 3 या 4 आ रहा हो। तो दैट डज नॉट मीन कि या 2 भी आ गया, दैट डज नॉट मीन कि आपने इसको फर्दर जो है वो पोटेशियम देना है, बिकॉज अभी आपने इसको इंसुलिन दी है तो वो सेल के अंदर चला गया, निकला नहीं है। सो इन दैट केस नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इसके आपने अर्जेंट ट्रीटमेंट के बाद आपने इसको रिमूव करना है, तो उसके लिए आप डायबिटिक्स दे सकते हैं। उस कैटायन आयन एक्सचेंज रेजन्स होते हैं, एसपीएसएस है, टेक्सलेट है, देयर आर मल्टीपल पॉलीमर्स आजकल आ रहे हैं हमारे पास, पेट्रीमर आ रहे हैं, सोडियम जिरकोनियम साइक्लोसिलेट, ये दीज आर न्यू पॉलीमर्स, ये यूज होने हैं, दैट आर वंडरफुल, ठीक है। जो कैटायन एक्सचेंज रेजन फॉर एग्जांपल टेक्सलेट के साथ जो इश्यूज हैं, लाइक ये कॉन्स्टिपेशन काज कर देते हैं, तो ये सेट सकता है, तो ये उससे बचाया जा सकता है, ठीक है। और अदर डायलिसिस भी किया जा सकता है इन सभी केसेस। सो आज का जो सेशन है मैं यहाँ तक ही लिमिट करूंगा। आई विश के आई कुड हैव कंप्लीटेड मैग्नीशियम एंड फास्फोरस and calcium as well, but sorry I had limited time, but I hope so कि आपको जितना भी डिलीवर किया गया होगा वो आपको समझ आ गया होगा। So no, I am open for questions, any kind of questions, I am ready to answer it, ठीक है। मैं क्वेश्चन सीक्वेंस देख रहा हूँ तो वहां पे मुझे नजर आ रहा है गिव क्लिनिकल एग्जांपल ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की क्लिनिकल एग्जांपल ये हो सकती है कि जो निस्ट लाइन है, ठीक है। निस्ट लाइन आपने नाम सुना होगा, ये 0.545% नॉर्मल लाइन, ठीक है। तो उसको जो है दैट्स एन एग्जांपल ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अलावा आप 1/5 सॉल्यूशन अगर कोई बनाते हैं, कुछ कंपाउंडिंग करते हो, how much fluid is required after removing ascites and which fluid is better to use in this case? अच्छा जी, फ्लूइड रिक्वायरमेंट अगर आप 6 to 8 लीटर्स अगर आप यूज रिमूव करते हैं, तो उसके लिए जो है ना आपको आई गेस इट इज 10 ग्राम ऑफ एल्बुमिन हैव टू यूज, ठीक है। तो इनिशियली जो है ना आपने एल्बुमिन लाजमी देना है, क्योंकि एसाइटिस डेवलप इस वजह से होती हैं कि जो ग्रेडियंट है, ऑस्मोलर ग्रेडियंट है, दैट इज इफेक्टिव, कि इंट्रावेस्कुलर जो है वो ऑस्मोलैरिटी कम है, बाहर ज्यादा है, बाहर जो है वो ऑस्मोलैरिटी कम है, तो वो फ्लूइड विल शिफ्ट इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस। तो जब आप कोलाइड्स देंगे तो वो क्या हो जाएगा कि एसाइटिस वापस डेवलप नहीं होती है। अच्छा, फ्लूइड कैलकुलेशन each for period and adult is same. It is somewhat same but somewhat different as well. For example, जो बच्चे हैं, मैंने आपको यही कहा कि वहाँ पे भी 100 ml पर केजी से ही आप यूज करेंगे, एंड देन 50 ml पर केजी फॉर द नेक्स्ट 20। इसको हॉलिडे सिगार मेथड कहते हैं। ये मेथड जो रहता है वो ज़्यादातर यूज किया जाता है। लेकिन अब इसमें कंपोजिशन को भी आपको देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चे होते हैं वहाँ पे उनकी जो बॉडी कंपोजिशन होती है, एडल्ट की जो बॉडी कंपोजिशन है मेल की, दैट 60% ऑफ द बॉडी कंपोजिशन इज मेल, मेल की जो है इज वाटर, फीमेल्स की 50% है। लेकिन अगर आप न्यूनेट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे 70 to 80% है, ठीक है। तो दैट्स वाई वहाँ पे 100 ml पर केजी फॉर द फर्स्ट 10 kg एंड 50 ml पर केजी। एडल्ट्स में आप जस्ट 25 to 30 भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक है हाइपरनेस्टाइन कितने एमईटी तक 24 आवर्स में दे सकते हैं?
तो इसका सिंपल सा है कि मैंने आपको यही कहा कि 8 MEQ पर आवर से आपने ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना। 8 MEQ पर आवर का मतलब है कि 1 MEQ 1 ml पर केजी 8 ml पर केजी पर आवर से ज़्यादा नहीं देना। ठीक है, तो 8 MEQ सोडियम डेफिशिएंट निकालने का फार्मूला भी आपको मिल सकता है इजीली, यू कैन फाइंड दैट, वहां से आप इसको कर सकते हैं। Photosensitive patient receiving IV potassium, but still, despite of uptrending, it decreases or remains same. Beside checking urinary concern. अच्छा, यही चीज मैंने आपको कहा कि अगर आप एक पेशेंट को पोटाशियम दे रहे हैं और उसका पोटाशियम जो है वो रिप्लेस नहीं हो रहा, तो इन दैट केस आपने क्या करना है, तो उसमें आपने उसका मैग्नीशियम लेवल भी चेक करना है और मैग्नीशियम को भी आपने रिप्लेस करना है। How to manage IV fluid administration in respiratory distress patients? अब respiratory distress patient, I don't know कि for example it could be like pulmonary edema है या etc. तो अगर pulmonary edema already edema है, तो in that case you're not going to use solution जो कि हर जगह basically distributed है, वहाँ पे colloids को use कर सकते हैं depending upon the patient, or you could limit it the use of IV fluids. So these were the questions. No more questions. So the thing is, that was all about the iFruits. I hope so you have understand it very well. So हम ये करेंगे कि for example अभी जो इसके certificates etc. हैं, and that would be provided to you in a week. एक feedback form आपके साथ share किया जाएगा, तो आपने वो feedback form fill करना है, and उसके बाद हम इसको आपको certificates within 2 weeks share कर दी जाएंगे. Please share the presentation. Yes, I can share the presentation, but एक space का एक चैनल होता है YouTube के ऊपर, तो ये जो presentation होगी ये YouTube के ऊपर अवेलेबल है, तो आप वहां से इसको सुन सकते हैं. How to manage fluid and electrolyte therapy in hypertension diabetic patient? अच्छा, it all depends upon the criteria. Hypertension है और उसको आपने फ्रूट देना है या नहीं देना, और इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी, इलेक्ट्रोलाइट सिंपली आपने, अगर आपको लग रहा है कि इसमें जो पेशेंट शॉक एक्सेट्रा की तरफ है, तो तब आप उसको देंगे. लेकिन अगर एक पेशेंट उसको आपने असेस किया, उसके आपने CVP लाइन असेस कर लिया, उसके GBP असेस कर लिया, अगर आपको ये लग रहा है कि पेशेंट जो है वो डेफिसिट है, तो तब आप उसको देंगे, अदरवाइज नहीं. लेकिन मतलब यही चीज आपको मैं डायबिटीज के हवाले से बता रहा था कि डायबिटीज में आप इस कंट्राइंडिकेशन मत बना रहे हैं. माइट बी योर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द डेक्सट्रोज, तो डेक्सट्रोज इज नॉट समथिंग कि आप डायबिटीज वाले को नहीं दे सकते. आप उसको दें, आप उसको मैनेज करें, स्पेशली इन केस इट इज एन इनपेशेंट, तो यू कैन यूज इट विद इंसुलिन एज वेल. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. Thank you so much for joining us, and your certificates would be shared with you soon. एक फीडबैक फॉर्म आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को ईमेल शेयर कर दिया जाएगा. आप वहाँ पे फीडबैक फॉर्म फिल करें, आफ्टर विद इन 2 वीक्स वो सर्टिफिकेट शेयर कर दिया जाएगा. बाकी जो प्रेजेंटेशन है दैट वुड बी अवेलेबल ऑनलाइन, हमारे यूट्यूब का जो चैनल होगा उसके ऊपर आप इसको देख सकते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.